ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੁਛ ਪਲ ਕੁਛ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਤਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨੇ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਮਨੁੱਖ, ਤਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਨ 'ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ, ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਨ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਦ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਨ 'ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ
ਅੱਜ ਤਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਤੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਤਨੇ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਚ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ 7ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਵਰਦੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਣਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਕੂਲੋਂ ਮੁੜਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਦੀ ਸੁਰਤ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਭਾਵ ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਆਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਦੋਂ ਜਾਈਏ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਰਤ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾਹਾ ਲਵਾਂ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ
घर दे विच जिहड़ी सतसंगत है उहदे विच की बोलिया जा रहा है, ये भी ध्यान रखदा है। नाल नाल वो ये भी ध्यान रखदा है कि कौन आउंदा है, कौन जांदा है, कौन बैठा है, कौन खड़ा है। ये सब कुछ ये मिडल क्लास दे विच जिहड़ा मनुख हाई दे विच पहुंचिया, हाई लैवल ते, वो हाई लैवल दे मनुख दा मकसद इक्को ही रह जाता है। इक्को ही मकसद, उहदा मकसद इक्को ही है कि जेड़ा मेरे मुखड़े राही सवास आ रहा ना, मैं ये भी इन्ना उच्ची ना कड्डां कि परमात्मा दे घर दी कोई मैथों गल विसर ना जाए। इनू हाई लैवल का ਸਰੋਤਾ जन कहते हैं, ਜਿਹੜੇ मनुख अपनी योग्यता ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, योग्यता ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। योग्यता जिवें बच्चा पहली ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਸੀ, साल होया दूजी क्लास ਵਿੱਚ हो गया, योग्यता वध गई। ਉਹੀ ਬੱਚਾ समय समय ਦੇ ਨਾਲ अपनी योग्यता ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ हाई लैवल ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। हाई लैवल ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੋਤਾ ਜਨ अपने जिंदगी दे अंदरों उच्ची सवास भी नहीं लैंदा कि परमात्मा दे घर दी कोई गल मैथों विसर ना जाए। क्योंकि जे परमात्मा दी गल कोई मैथों विसरी तो मेरी जिहड़ी ये जिंदगी दा अहम हिस्सा सी ये बर्बाद हो जाऊगा। तो मैं कोई भी गल परमात्मा दे घर दी जिहड़ी है वो विसर नहीं देनी। इनू हाई लैवल का ਸਰੋਤਾ कहते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी योग्यता वधाई है। बहुते ਸਰੋਤਿਆਂ दी योग्यता कदे वधदी नहीं है, लम्मे टाइम दे करते ने सतसंगत। मकसद की है? मकसद कोई उन्हां दा ये नहीं हुंदा कि हाई लैवल ते जाया जाए, प्राइमरी क्लास दे विच ही बैठे रहंदे ने सारी सारी जिंदगी, एको ही जगह ते बैठ के कढ़ दिंदे ने सारी जिंदगी। बस उन्हां नूं जिहड़ियां अपनियां मंगां ने, ये मंगां तो ही उच्चा नहीं उठ सकदा मनुख। जद भी परमात्मा दे घर विच आया तो परमात्मा दे अगे इन्हें अपनियां मंगां रख दित्तियां ने। जद इन्हें परमात्मा दे घरे आके अपनियां मंगां रख दित्तियां ने तो ये परमात्मा दे घर दे विच आया तो है, पर आया ये इस लैवल दे है जिवें शहर बाजार दे विच असीं जाने हां, धन दिता चीज़ खरीदी, वपारक सौदा आया तो है, योग्यता नहीं वधाई, मंगां तक ही सहमत रह गया। ते जदों मंगां तक सहमत रह गया, यही मंगां मनुख नूं एक दिन तृष्णा वल लै जांदियां ने। ते तृष्णा गुरु साहिब जी महाराज कहंदे किसी दी अज तक नहीं बुझी। तृष्णा बिरले ही की बूझी है, कोट जोरे लाख करोरे मन ना हो रे, परै परै के ही को लूझी है। सुंदर नारी अणक प्रकारी, पर गृह विकारी, बुरा भला नहीं सूझी रे। जिहदी तृष्णा बन जावे, तृष्णा वाला मनुख ते बुरे ते भले की पहचान कर ही नहीं सकता, नहीं कर सकेगा। ते तृष्णा एक इहो जी वस्तु है, तृष्णा किसनों कहते हैं? तृष्णा एक इहो जी वस्तु है कि जिमें लकड़ियां दे ढेर नूं बहुती अग लगी होवे ते ओहदे विच असीं लकड़ियां होर सिੱਟੀ जाइए, होर सिੱਟੀ जाइए ते अग नूं असीं पुछिए कि हुण तेरी तृष्णा बुझ गई इन्नियां लकड़ियां मचा के? तृष्णा अग नूं पुछिए कि तेरी प्यास बुझ गई, हुण लकड़ियां उहदे विच सुੱਟੀ जाइए तो अग उसका कोई जवाब नहीं देवेगी, राख करी जाएगी सब। ये तृष्णा जिहड़ी है जदों पैदा हो जाती है फिर मनुख की अवस्था ही ये बन जाती है, सिर्फ मंगां। ते गुरु साहिब जी महाराज कहते ने
कि तू इस वास्ते सतसंगत करदा है ताकि जिहड़ी तेरी कीती हुई सतसंगत है ये तेरी लोक अते परलोक दोने जहानां दे विच सहायता करे, दोने जहानां दे विच सहायता करे। पर मनुख कल्ली खड़ा है लोक ते, इन्हें अपनी परलोक वाली योग्यता नहीं वधाई हजे तक। मनुख की जिंदगी दियां बड़ियां मंगां ने, बड़ियां इस दियां तरंगां ने, ते बड़ियां मंगां ये परमात्मा तो मंगदा रहिंदा। कुछ मंगां इस नूं मिल जांदियां ने, कुछ नहीं मिलदियां। ये तो जिंदगी का अहम हिस्सा बनिया होया है। गुरु साहब जी महाराज कहते ने तू अपनी योग्यता वधा लै। जदों तेरी योग्यता वध गई फिर गुरु साहब जी महाराज कहते ने भाई मंझ भावें सखने खूह दे विच डिग्या होया सी, तू कल्ली धरती दी ना गल कर, जे तेरी योग्यता वध गई खूह दे विच डिगे होए नूं भी गुरु साहब अपने हत्थां दे नाल कढणगे तैनूं, अगरवाइज जे योग्यता वधदी है तां। पर मनुख परमात्मा दे नाल करदा है वपार, सौदेबाजी। परमात्मा तू मेरा यह काम कर दे, मैं तेरा यह काम कर दूंगा। जिस चीज़ के नाल गुरबाणी का बिल्कुल भी कोई दूर नेड़े का रिश्ता नाता नहीं है, क्योंकि जिन्ने कारज मनुख के जिंदगी के होने ने वो तो होने ने, जो होना वो होना है, जो नहीं होना वो नहीं होना। सिर्फ तू अपनी योग्यता वधाउणी है। धार्मिक विषय के अंदर बहुत मनुख लगातार 50-50 साल प्राइमरी क्लास दे विच ही बैठे रहंदे ने, छड्डदे नहीं है। प्राइमरी स्कूल नूं बिल्कुल ही नहीं छड्डदे। पहली तो दूजी क्लास विच हो गए, दूजी तो फिर पहली विच आ जांदे ने, फिर पिछां हट जांदे ने। 2 कदम फिर चकदे ने अगाहां नूं, फिर पिछे आ जांदे ने। धार्मिक दुनिया के अंदर मनुख बिल्कुल भी इस प्राइमरी क्लास दे विच, इहनूं प्राइमरी क्लास कहंदे ने, परमात्मा के घर विच आउणा ते सिर्फ अपनियां मंगां करके परमात्मा के घर विच आउणा। ते ये मंगां बच्चे दी छोटी मंग है, नौजवान दियां थोड़ियां मंगां वध गईयां ने। माफ़ करना, बुढ़े होए मनुख नूं ते मंगां घेर के रख लैंदियां ने। रही कल्लियां मंगां जांदियां ने, ए बचपन जवानी ते बुढ़ेपा ते उसदा खत्म हो जाता है। माफ़ करना, मंगां ही रह जांदियां ने कल्लियां। बहुते मंगदे ने, जिहदे घर दे विच औलाद पैदा होई फिर उसदी मंग होंदी है कि औलाद दी शादी हो जाए। चलो ठीक है, हो गई। फिर हुण घर दे विच पोतरा भी चाहिदा है, चलो पोतरा भी हो गया। रब करे उम्र वड्डी हो जे, पोतरा नौजवान हो जे, ते फिर भी मंग वध गई कि पड़पोतरे दा मुख भी देख लईए, फिर भी मंग वध गई। तो जिमें जिमें उम्र वधदी तुरी जाती है, मंगां उवें उवें वधदियां तुरीआं जांदियां ने। एक दिन बुढ़ेपा नहीं रहिंदा, सिर्फ कल्लियां मंगां रह जांदियां ने, सिर्फ कल्लियां मंगां। ते जद कल्लियां ही मंगां रह जांदियां ने, यही मंगां फिर परमात्मा दे घर विच आए नूं इस दे अंदर तृष्णा पैदा कर दिंदियां ने। ये मंगां ते मंगां ते निरंतर लगातार चलियां, उस दे तृष्णा ने जन्म ले लिया। अज ते कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। अज वो सुचज्जे ढंग का जीवन नहीं रहा। ते गुरु साहब जी महाराज कहते ने, तेरे वास्ते ये सतसंगत का दिहाड़ा जिहड़ा बनाया है, ये दिहाड़ा इस वास्ते बनाया सी कि इस दिहाड़े दे नाल नाल तू अपनी योग्यता बढ़ा सके, पात्रता वध सके तेरी।
सत संगत दे नाल। सत संगत करन दा मतलब है कि मनुख की योग्यता वधे, पात्रता वधे। ये नहीं है सत संगत करन दा मतलब कि बंदे दियां मंगां वध जाण, मंगां वध जाण। ते बंदे दियां ते मंगां वध गईयां। कोई 10 साल 20 साल गुरुद्वारे दे विच आया, परमात्मा दे घर दे विच उहदी मंग वधी है, मैनूं कोई अहुदा चाहीदा है, मंग वध गई। तो ये मंगां तृष्णा तक लै गईयां। ते तृष्णा दे विच फिर मनुख दा जिहड़ा जीवन है ये बहुत तड़फदा रहिंदा है, इन्ना तड़फदा रहिंदा है, इन्ना तड़फदा रहिंदा है कि इस जीवन नूं जिहड़े भी पासियों हवा लगदी है तत्ती ही लगदी है, ठंडी हवा नहीं इस नूं लगदी। जदों अवस्था मनुख की तृष्णा तक पहुँचती है फिर मनुख अक्सर कह उठदा है कि गुरबाणी दे जाप करवाए सी पर कोई भला नहीं होया। तो गुरबाणी दे जाप किस वास्ते करवाए सी? वो तो तृष्णा ने करवाए सी तेतों। तो गुरु साहिब जी महाराज कहते ने कि तू अपनी सिर्फ पात्रता वधाउणी है। स्रोते जन अनेकां प्रकार दे स्रोते सतसंगत दे विच बैठे हुंदे ने। स्रोते 3 प्रकार दे मने गए ने, ऊंगा, चूंगा ते सूंगा। ऊंगा, चूंगा ते सूंगा। ऊंगी जाना, नींद आई जानी, सतसंगत दे विच भी आवे, किसी कारण करके मजबूरी करके विचारा आ गया, नींद आई जाती है। चूंगा, चूंगा स्रोता कहते ने जिहड़ा कोई देखदा रहिंदा है। सतसंगत विच किन्ने क जाने आ गए, कौन कौन आया, कौन बैठा, कौन चलिया गया, कौन की करदा है, यह सारा कुछ चेक करदा रहे। एक हुंदा है सूंगा स्रोता। सूंगे स्रोते का मतलब एको ही हुंदा है कि जो गुरु का शब्द है मैं ऐसो तक ही मतलब रखना, मैनूं होर किसी ना कोई मतलब नहीं है। ते जेड़े ऐसे गुरमुख सज्जन जन ने, जेड़े ऐसे गुरमुख सज्जन ने, उन्हां दी जिहड़ी पात्रता बहुत वध जांदी है। किन्नी वध जांदी है कि उन्हां दा नाम रहिंदी दुनिया तक इस संसार दे विच रहिंदा है। किसे कवि ने कलम दे नाल लिखिया, कहंदे किसे किसे मर्द का सवेरे उठ नाम लईए। किसे किसे मर्द का सवेरे उठ नाम लईए, किसे किसे मर्द के नाम की कसम है। किसे किसे मर्द का सवेरे उठ नाम लईए अपने घर विच, बहुत चंगा सी। किसे किसे बंदे दे नाम की कसम है भी ये बंदे दा अपने घर दे विच नाम नहीं लेना। किसे किसे मर्द का सवेरे उठ नाम लईए, किसे किसे मर्द के नाम की कसम है। किसे किसे मर्द की दाढ़ी का करोड़ मूल्य, किसे किसे मर्द की मुछ भी भस्म है। किसे किसे मर्द के मुख में गुलाब अर्क, किसे किसे मर्द के मुख में गुलाब अर्क। गुलाब अर्क जद भी ये बोलते ने अपनी जबान विचों, हमेशा ही इते बड़ी पात्रता वाले बोल बोलते हैं। किसे किसे मर्द के मुख में गुलाब अर्क, किसे किसे मर्द के मुख में भस्म है। किसे किसे मर्द दे मुरे हाथ जोड़ी देने सजना, अपनी जबान दे विचों कुछ बोल ना पई, क्योंकि पता है कि जद भी बोलिया इन्हें कोई चज दा बोल नहीं बोलना। किसे किसे मर्द के मुख में गुलाब अर्क, किसे किसे मर्द के मुख में भस्म है। किसे किसे मर्द का जुगा तिक नाम रहे, किसे किसे मर्द का ज्योंदियां ही खत्म है।
किसे किसे मर्द का जुगा तिक नाम रहे, किसे किसे मर्द का जिउंदे ही खत्म है। बिल्कुल कोई नाम नहीं लेना चाहता जिउंदे का भी, इसका नाम घर दे विच की लैना। तो किसे किसे मर्द का सवेरे उठ के नाम लेंदे ने। ये किसी कवि ने अपने कलम के नाल शेर बड़े सुचज्जे ढंग के नाल लिखे है। ये उही मनुख ने जिन्हां ने अपनी पात्रता वधाई जां जिन्हां ने अपनी पात्रता समाज विच घटाई है। कुदरत के नियमां दे विच बच्चे तो जवान हो गया, जवान तो बुढ़ेपे दे विच चलिया गया, कुदरती नियम ने। पर सुरत करके बहुत सारे 80 साल के बुढ़े भी बच्चों वालियां गल्लां करते हैं, ते सुरत करके बहुते निदान बच्चे भी जिहड़े ने वो बुढ़ियां वालियां गल्लां करते ने। गुरु साहिब जी महाराज ते ऐलानियां कहते ने, राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। परमेश्वर का नाम जपना है ते तू ऐ जप जिमें ध्रुव ते प्रहलाद ने छोटे छोटे बच्चों ने जपिया सी। गुरु साहिब जी महाराज ऐलानियां कहते ने, इतिहास है छोटे जे बच्चे नूं गुरु नानक देव साहब महाराज कहते ने, है ते तू बच्चा गल्लां बड़े बुढ़ियां वालियां करदा है सुरत करके। क्योंकि परमात्मा दे घर दे विच मनुख दे शरीर करके कदर नहीं है, सुरत करके पैंदी है। अंदरों सुरत कैसी है इसकी, ते अंदरों इसकी नीयत कैसी है, उस करके परमात्मा के दर ते इहदी पात्रता मन्नी जाती है। शरीर करके किसी की पात्रता इस दर ते नहीं मन्नी जाती। माफ़ करना, गुरु साहिब जी कृपा करन। गुरु साहिब जी महाराज कहते हैं कि तू अपनी सतसंगत इस वास्ते करदा है ताकि तेरी जिहड़ी है पात्रता वधे। प्राइमरी क्लास दे विच ना बैठा रवे, मिडल दे विच जावे, हाई लैवल ते जावे, इन्ना हाई लैवल ते जावे कि हर एक घर दे विच तेरे जाण तो बाद जां तेरे हुंदिया होया तेरा जिहड़ा नाम है वो हर एक घर दे विच लैता जावे। एडी वड्डी पात्रता गुरु साहिब जी महाराज मनुख दी बना दिंदे ने। अगरवाइज जे कोई गुरबाणी नूं आधार मुख रख के अपना नाम परमेश्वर दा नाम जप रहा है ते किसे किसे मर्द कोई परमात्मा दे घर दे विच आया है तन करके, कोई परमात्मा दे घर विच आउंदा है मन करके। हाजरियां लगदियां ने उन्हां दियां जेड़े मन करके आउंदे ने। तो मन करके ते बहुत सारे तन की मजबूरी है, तन नूं हर एक जगह ते नहीं लिजाया जा सकता, तन नूं हर एक जगह ते बिठाया नहीं जा सकता। तन की की है, तन की तो इस उम्र के हिसाब के नाल भी मजबूरी बन जाती है। तन की तो बच्चे ने निदान बच्चे ने सुबह अमृत वेले नहीं उठ सकते, नींद जो प्यारी हुई। कोई बहुत बुढ़ा है, शरीर नूं रोग लग्या है, ये तन बिल्कुल भी अज इजाजत नहीं दिंदा कि गुरुद्वारे जाके सतसंगत कर। मन तो फिर भी संगत दे विच आ जाता है। तन दियां करोड़ां मजबूरियां ने जिहड़ियां तन नूं संगत विचों आउण तो रोक लैंदियां ने। मन की कोई मजबूरी नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है। ये कद भी परमात्मा के घर विच आ सकता है, ते जद भी ये परमात्मा के घर दे विच आउंदा है ते उस वक्त ही परमात्मा के घर दे विच इसदी हाजरी लग जाती है। तो तन दा करोड़ां मजबूरियां ने, कोई बीमार है, किसी के काम धंधे इन्ने वधे हुए ने कि बिल्कुल भी वो अपने तन नूं शरीर नूं संगत दे विच नहीं लिया सकते। मन की कोई मजबूरी नहीं है। मन करके जिन्ने असीं तन करके परमात्मा के घर दे विच नित बैठते हैं, सच जानो इस तो दुगने ऐसे शरीर होणगे जिहड़े मन करके परमात्मा के घर दे नाल हुण जुड़े बैठे ने। गुरु साहिब जी महाराज कृपा करन। समाप्ति का अपना समा हो गया। आईयां होईयां संगतां दा धन्नवाद, भुलां चुकां दी खिमा।
ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੁਲਾਇਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।